Hello all. Today we will do the next chapter of second unit, that is rapid population growth. Rapid population, you all know meaning of population, that is a population is the human being or the percentage of people in India, that is the population. So chapter name is rapid population growth. It means कि जो हमारी population is increasing at a very high speed or very high rate. Okay, so it is you all know that India is one of the second most country in the most populous second most populous country in the world. Okay, so in India there is a population is increasing at a very high rate, and and the impact of the high population is also very not effect is not good. ओके, इट इज़ क्या कहते हैं कॉजिंग सो मैनी प्रॉब्लम, सो मैनी कॉन्सिक्वेंसेज, सो मैनी इम्पैक्ट्स. सो दैट इज़ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. वट आर द रीजन्स फॉर द ओवर पॉपुलेशन? You all know it is practical point. First is birth rate. Birth rate is high. People are giving more birth to the child. They are not planning. They are not like they are not, you all know that कि they are not taking the precaution, they are not taking according to the government of India there must be a 2 child, but they are not planning in such a way, and they are, you all know that the Muslim generation giving a lot of birth to the babies. So because of that our population is increasing day by day. Next is fertility rate. Fertility rate is also means कि people measures have been falling, means कि population controlling measures have been falling. People are not following the population जो controlling measures, but now people have become aware. They are not giving a birth to more than 2 children, but you all know that in previous time people there मतलब at least 3 or 4 every couple had a 3 to 4, at least 3 to 4 child. Okay, so they were not following the measures of controlling family planning. So next is early marriage and universal marriage system. That means कि पहले in the previous time people get married early. इसका मतलब क्या है कि people बहुत मतलब जल्दी शादी कर देते थे, जिसकी वजह से they get a lot of babies, है ना, and they do not क्या कहते हैं take up precautions. So it's also one of the reason behind the overpopulation. Next is poverty and illiteracy. Another reason for that is poverty. But why there is poverty means कि people illiterate होते थे and they are giving birth more child in the hope of that कि every child they will employ every child in a some work and they will get some money from that. क्योंकि poverty बहुत ज़्यादा थी, जितने बच्चे होंगे उतने कमा कर लाएंगे और हमारा घर जो होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसकी वजह से लोग गिव्स अ बर्थ टू द लॉट ऑफ पीपल, वो मतलब मोर चिल्ड्रंस. ओके, नेक्स्ट इज एंड दे वर नॉट अवेयर अबाउट द हाउ टू फैमिली प्लान, वट शुड बी मतलब हाउ मच बेबी दे शुड हैव. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दैट. एज ओल्ड कल्चरल नॉर्म्स का मतलब क्या होता था आपको भी पता है. पहले अगर बेटियाँ हो जाती थी इन द होप ऑफ द सन, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स, तो उसकी वजह से वो क्योंकि बेटा चाहिए लोगों को, तो दैट्स वाई जो मतलब इस वजह से वो क्या कहते हैं बच्चे भी क्या होते थे, ज़्यादा हो जाते थे. नेक्स्ट इज़ इलीगल माइग्रेशन. इलीगल माइग्रेशन मतलब मैनी पीपल माइग्रेट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम टू देयर एंड दे आर रिसाइडिंग देयर बिकॉज ऑफ दैट आर मतलब कंट्री पॉपुलेशन हैज़ हाइक. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन. इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है बेटा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. यू ऑल नो दैट कि फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज होता है अनएम्प्लॉयमेंट. जब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, आप देख रहे हो यू आर फेसिंग द सेम फिनोमिना, फेसिंग द सेम प्रॉब्लम इन इंडिया कि बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन द पीपल आर फेसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट. पढ़े लिखे लोग भी या तो नौकरी नहीं है तो दे आर मतलब दे आर वेरी अंडर पेड. नेक्स्ट इज मैन पावर यूटिलाइजेशन. मैन पावर यूटिलाइजेशन मीन्स कि डिप्रेशन मतलब जो हमारी एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या हो रही है ज़्यादा, उसकी वजह से मैन पावर यूटिलाइजेशन मतलब हम लोग अच्छे लोग जैसे हाई पीपल है लेकिन पॉपुलेशन बहुत है तो लोग सस्ते पे भी काम करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी वो छोटे मोटे काम क्या हो रहे हैं करने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी सबको रहने के लिए घर चाहिएंगे, रहने के लिए घर चाहिएंगे तो
बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, होम्स बनाने पड़ेंगे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, ये सारी मतलब हेल्थ केयर जितनी, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेड होंगे। नेक्स्ट इज डिक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज कॉस्ट। डिक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज कॉस्ट मतलब क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अपने इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम उनकी डिमांड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके, क्योंकि हमारी उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, इतना हमारे पास इंडस्ट्री लेवल नहीं है, तो प्रोडक्शन कम होती जाएगी, होती जा रही है, और बिकॉज ऑफ डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, और जो इसकी वजह से जब डिमांड ज़्यादा है वो और प्रोडक्शन कम है, तो चीज़ों की कॉस्ट भी क्या होती जा रही है। आपने देखा होगा इन्फ्लेशन क्या आ गया, पहले से ज़्यादा आ गया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसकी वजह से प्राइजेस क्या हो चुके हैं, शूट अप हो चुके हैं। नेक्स्ट इज इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो कहीं पे हर किसी को हम लोग इक्वली इनकम नहीं दे सकते हैं, किसी को कम देनी पड़ेगी, किसी को ज़्यादा देनी पड़ेगी। छोटे, अब आप जैसे अमेरिका जैसे शहर में चले जाओ, वहाँ एक स्वीपर हो और एक डॉक्टर, दोनों को सेम सैलरी मिलती है, बट इट इज़ नॉट सेम इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पर हम हर किसी को इक्वल इनकम नहीं दे सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल थ्रेट। इन्वायरमेंटल थ्रेट क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट लॉट ऑफ लोगों के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, वो अंडर यूटिलाइज उसको मिसयूज़ कर रहे हैं हमारे नेचुरल क्या वो जो रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। आप देख रहे होंगे जितना पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ चुका है हमारे इंडिया में, अब कितनी बीमारियाँ फैल चुकी हैं, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, पेड़ रहे नहीं, लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज स्टेप्स। दिस आर द स्टेप्स कि हाउ कैन वी कंट्रोल द पॉपुलेशन। सबसे पहले लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाए, और वुमेन और लड़की और लड़कियों का स्टेटस इक्वल समझाया जाएगा, तभी लोग उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे कि भाई लड़की हो गई है तो फिर अब लड़का करना है, अगर लड़का नहीं हुआ तो तब तक करते जाओ, तो दैट इज़ मतलब बच्चे क्योंकि गर्ल्स को बर्थ करते जाओ। सो नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। लोगों को अवेयर कराना चाहिए, लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए हाउ कैन दे मेक अ फैमिली प्लानिंग, हाउ कैन दे मतलब प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ इंकरेजिंग मेल, मतलब लोगों को मेल स्टरलाइजेशन मीन्स की उनको कंट्रोल कराना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंकरेजिंग फीमेल एम्पावरमेंट, लोगों लड़कियों को एम्पावरमेंट, जितना भी लड़कियों को जो हक है वो राइट्स हैं, या फिर उनको भी डिसीजन देने का पावर देनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां पावर ले सकेंगी तो ही वो कह पाएंगी कि हम लोग ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते। पहले क्या होता था, लड़कियों को फोर्स किया जाता था करने बच्चे करने के लिए, बट अगर उनको एम्पावर्ड मतलब लोगों उनको डिसीज़न देने का हक दिया जाएगा तो वो भी खुद डिसीज़न लेंगे कि ठीक है हम लोग इससे ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोर केयर हेयर सेंटर फॉर द पुअर, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएँ। सो दिस आर द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कंट्रोल आवर पॉपुलेशन।